Good morning, students. In our previous lecture, we studied about IUPAC nomenclature, and today, in continuation with that, we are going to start rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, organic compound with functional group, and organic compounds containing polyfunctional group. So first, rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated, that means which contain double or triple bond. Alkenes and alkynes. So first rule is the parent chain must contain the multiple bond regardless of the fact whether it also denotes the longest continuous chain or not. Means when we select the longest chain must contain multiple bond. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो हमारी पेरेंट चेन मल्टीपल बॉन्ड हमेशा कंटेन करेगी, वेदर इट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नोट. ठीक है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने रूल किया पेरेंट चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक है. बट अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारी पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. लाइक इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड. सो इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5. ठीक है. जब पेरेंट चेन डबल बॉन्ड इंक्लूड करेगी देन देर इज 5 कार्बन एटम्स, और जो इथाइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा. ठीक है. बट हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी बनती है 1 2 3 4 5 6. लॉन्गेस्ट चेन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेन 6 कार्बन एटम विच इज नॉट इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड. तो जो ये वाली पेरेंट चेन होगी, दिस इज द रॉन्ग वे टू सिलेक्ट पेरेंट चेन. नाउ नेक्स्ट इज इफ बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है देन द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द एंड विच इज नियरर टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. नंबरिंग हम हमेशा उस साइड से करेंगे the end which is nearer to double or triple bond. Like in this example, the organic compound is CH3, CH, double bond CH, CH2, single bond CH, C, triple bond C, CH2, CH3. If we start numbering from this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means the position for double and triple bonds are second and fifth, and from right hand side they get position third and sixth. So the lowest position is second and fifth. So this is the correct way of numbering, or we can say that multiple bond always followed lowest set of lock and tool. Lowest set of lock and tool numbering हम हमेशा उस साइड से करेंगे, from there they get lowest position. Is it clear? Now next is out of double or triple bond. The double bond is always given preference over the triple bond. अगर different direction से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है देन वी ऑलवेज गिव लोएस्ट पोजीशन टू डबल बॉन्ड. ठीक है. डबल और ट्रिपल में से डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिलेगी. Like from left hand side triple bond get first position, and from right hand side double bond get first position. So we always give preference to double bond over triple bond. हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे from where double bond get first position. Now next is positional number is always placed before its suffix in case of double or triple bond. If double or triple bond are present in between the organic compound. ठीक है. अगर सेंटर में कहीं पे प्रेजेंट है देन वी ऑलवेज मेंशन देयर पोजीशन बिफोर द सफिक्स. लाइक इन दिस एग्जांपल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन 1 2 3 4. इस साइड से भी सेकंड पोजीशन पे लोएस्ट नंबरिंग हमें देनी है. तो फॉर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्ड रूट इज ब्यूट. डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर सेकंड पोजीशन देन -2
and for double bond suffix is -ene. So the name for this compound is but2-ene. Is it clear? Now next is, if both the double and triple bond are present, then their positions are written before their respective suffix and the terminal e from the suffix -ene is dropped while writing the complete name of the organic compound. अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक, तो हम उनके सफिक्स से पहले उनकी पोजीशन तो मेंशन करेंगे ही, और जब आप सफिक्स मेंशन करोगे तो डबल बॉन्ड का ईन पहले मेंशन होगा, आफ्टर दैट आइन, और ईन का जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब अगर आप दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करते हो, देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट डिफरेंट पोजीशन. इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, यहाँ से डबल बॉन्ड गेट सेकेंड पोजीशन. डिफरेंट पोजीशन पे, देन दे फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल. अब हम उन्हें उस साइड से नंबरिंग करेंगे फ्रॉम वेयर दे गेट लोएस्ट पोजीशन. दैट इज फ्रॉम राइट हैंड साइड से पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दे गेट सेकेंड and fourth position. So total 5 number of carbon atoms were duty spent. Double bond is present over third position, तो हाइफन लगा के 3. इन फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 आइन, और जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो इन का ई ड्रॉप हो जाएगा. So the name become pent3-ene-1-ine. Now next is, when double and triple bond present in a molecule are not included in the longest chain. In such cases the following prefixes are used. Now if an organic compound contain more than one multiple bond, ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है, एंड वी नो दैट पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने चाहिए. बट अगर मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद भी इफ 1 or 2 मल्टीपल बॉन्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, देन दैट मल्टीपल बॉन्ड आर यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. लाइक अगर सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, अगर वो एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज हो रहा है, देन इट इज नेम्ड एज मिथाइलीन. ठीक है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथाइलीन. इफ मल्टीपल बॉन्ड इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन एटम एंड यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट, साइड चेन में अगर गए हैं, देन द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर दिस इज इथाइलाइडीन. एंड फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अगर जो सब्सटीट्यूएंट है वो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, एंड द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन इज फर्दर फॉर्म अ डबल बॉन्ड and it containing 2 carbon atoms, then it is named as vinyl group. CH2 double bond CH group is vinyl group. और 2 कार्बन है, 2 के लिए वर्ड रूट इथ, डबल बॉन्ड इन, इट इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज्ड हुआ है तो हम इसको आइल की फॉर्म में लिखेंगे. और विनाइल ग्रुप ऑल्सो नेम्ड एज इथ इनाइल. इज इट क्लियर? एंड 2 कार्बन एटम्स विथ ट्रिपल बॉन्ड आर नेम्ड एज इथ इनाइल. यहाँ पे वाई है. फॉर 2 कार्बन एटम्स वर्ड रूट इज इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन, और एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज हुआ है तो इसको हम आइल की फॉर्म में लिखेंगे, इथ इनाइल. इज इट क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल, राइट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्टली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी डेट इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. So if we select this chain or this chain, both are containing 7 number of carbon atoms. Look here, if we select this chain, then the parent chain contain triple bond, and for this, and if we select this chain, then the parent chain contain double bond. और अभी हमने पढ़ा that double bond are always given preference
एज कंपेरिजन टू द ट्रिपल बॉन्ड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में हम हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, तो अगर हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में दो चेन्स बन रही हैं, एक में ट्रिपल बॉन्ड है एक में डबल बॉन्ड है, देन वी ऑलवेज सिलेक्ट दैट चेन एज अ पेरेंट चेन विच इंक्लूड डबल बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो अब जो दो कार्बन एटम है विद ट्रिपल बॉन्ड, नाउ दे यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. नाउ अब इसमें हमने नंबरिंग करनी है. नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट पोजिशन. अगर हम इस डायरेक्शन से करते हैं नंबरिंग, सो द डबल बॉन्ड गेट 1 2 3 4 5 6 7. They get first, third and sixth position. And from this direction 1 2 3 4 5 6. So they get first. From this direction they get first, fourth and sixth position. So अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से नंबरिंग कर रहे हैं, so the set of 3 double bond get the highest position, which is wrong. Is it clear? In case of multiple bond, we always select that position from where multiple bond get the lowest set of locants. So the name for this compound is, यहाँ पे जो substituent है वो फिफ्थ पोजिशन पे प्रेजेंट है 5. Now substituent contain 2 carbon atoms, eth with triple bond, तो eth enyl. Parent chain contains 7 carbon atoms, hapt. For this word root is hapt, and 3 double bond at position first, third and sixth. Now double bond are present more than one. Then the prefix di, tri, tetra are used. तो 3 है, 3 के लिए we use the prefix tri, and the suffix for double bond is -ine. So the name for this compound is 5-ethenyl hapt 1,3,6 triene. अगर आप यहाँ पे नेमिंग करते हो 1 2 3 3-ethenyl hapt 1,4,6 triene, that is wrong. Is it clear? Now next is write the name for this compound. Now firstly select the longest parent chain which must include the triple bond. ठीक है, अब यहाँ पे एक ही मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे फ्रॉम वेयर द ट्रिपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8. आप किसी भी साइड से नंबरिंग करो, इट ऑलवेज कंटेन 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द रिमेनिंग 3 कार्बन एटम्स आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे अब आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो 5. सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड 3 कार्बन एटम, वर्ड रूट प्रोप. सब्स्टिट्यूएंट में तो प्रोपाइल, 8 के लिए वर्ड रूट ओक्ट. ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है 2-ine. So the name for this compound is 5-propyl oct 2-ine. Is it clear what is the name for this compound? Now from here double bond get second position from both the direction. First 1 2 1 2. ठीक है, तो हम अब उस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिले और जो हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोएस्ट नंबर मिले. Now this organic compound include bromine. Bromine है, halogen है. Now halogen are used as a prefix with name halo. So first position पे है तो 1 bromo. ब्रोमीन है तो प्रीफिक्स ब्रोमो यूज होगा. नाउ द पेरेंट चेन कंटेन 4 कार्बन एटम्स, 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट. सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है तो 2-ine. So the name for this compound become 1-bromo-bute-2-ene. Is it clear? Now next are rules for IUPAC nomenclature of compounds containing one functional group, multiple bond and substituent. ठीक है, अब जब कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, तो अब फर्दर हम उनकी नेमिंग किस टाइप से करेंगे. फर्स्ट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the functional group, maximum number of multiple bond as a parent chain,
whether it contain longest possible carbon chain or not. ठीक है, अब अगर कोई भी कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन करता है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो हमें पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है विच मस्ट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है, अब अगर मेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप. मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे. सो अब हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O सेंटर में है, डेट इज कीटोनिक ग्रुप. ठीक है, तो हम नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट पोजीशन. 1 2 3 4 5 6. Parent chain must include the functional group as well as multiple bond. So our parent chain become this. Is it clear? So what is the name for this compound? Now it contains two substituents. One at third position and another one at fourth position. Third position पे there is only one carbon and at fourth position substituent contain 3 carbon atoms. तो 1 के लिए word root myth, 3 के लिए prop. तो हम जब भी नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो M और P में M पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल. Now the parent chain contains 6 carbon atoms. For 6 word root is hex. अब यहाँ पे 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन. सेकेंड पोजीशन पे मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप. फॉर कीटोनिक ग्रुप सफिक्स इज ओन. सॉरी 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 5 इन 2 ओन. अब जब भी हम सफिक्स मेंशन करेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स का जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज 2 वोवल्स एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे. सो द नेम फॉर दिस कंपाउंड बिकम 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन 2 ओन. Is it clear? Now next is number the parent chain in such a way that the functional group gets the lowest locant even if it violates the lowest set of locant rule for substituent. ठीक है, जैसे कि हम लाइक इन दिस केस, ठीक, जब भी हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे then our functional group always gets the lowest position. फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, फिर वो फर्दर लोवेस्ट सेट फॉर लोकेंट्स रूल फॉलो करे या ना करे. इज इट क्लियर? सो व्हेन वी डू नंबरिंग फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पोजीशन. तो अगर हम इस साइड से करते हैं तो द पोजीशन बिकम 3rd and 5th एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन 1st, 2nd, 3rd, 4th. लोकेंट्स आर 2nd and 4th. तो लोवेस्ट सेट तो 2 और 4 का है, बट 2 और 4 में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इट गेट हाईएस्ट पोजीशन. ठीक है, 4th पोजीशन पे, लोवेस्ट पोजीशन पे नहीं है. सो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग. तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पोजीशन. सिमिलरली इन दिस कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट 2nd पोजीशन. ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को हमारी लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी. फ्रॉम दिस डायरेक्शन position of functional group and multiple bonds are 2nd, 3rd and 6th. And from this direction second, 5th and 7th. ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गई है क्योंकि यहाँ पे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वैसे ही फॉलो नहीं करता. सो दिस वे इज करेक्ट. When we do numbering, always start numbering from that direction where functional group gets the lowest position.
सो द नेम फॉर दिस कंपाउंड बिकम, 5th पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 5 मिथाइल, पेरेंट चेन कंटेन 6 कार्बन एटम हेक्स एंड ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। थर्ड पोजीशन पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन 3 ओन। एंड फॉर दिस numbering is correct. तो इट इंक्लूड टोटल 8 कार्बन एटम्स ऑक्ट। थर्ड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रीफिक्स इन, एंड एट 6 पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट 6 आइन, and the main functional group is present at 2nd position, that is ketone. Is it clear? Now next rule is, if however both double and triple bond do not form a part of parent chain, then the lowest locant is assigned to either the double or triple bond, whichever is nearer to the functional group. ठीक है, अब अगर हमारा कंपाउंड कुछ इस टाइप से है तो उस केस में अगर हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम दिस डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब दोनों चेन 6 कार्बन एटम इंक्लूड कर रही है, चाहे आप इसको सिलेक्ट कर लो चाहे उसको सिलेक्ट कर लो। तो अब इस चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हुए अब हम ये चेक करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से विच मल्टीपल बॉन्ड इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब जो फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा क्लोज होगा, नाउ दैट मल्टीपल बॉन्ड आर इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। लाइक इन दिस एग्जाम्पल 1 2 3 double bond is present at 4th carbon and triple bond is present at 5th carbon. तो our parent chain include double bond और जो triple bond है वो side chain में चला जाएगा। And for in this case 1 2 3 4 5 6 3 4 5, for this organic compound triple bond is nearer to the functional group and double bond is far away from the functional group. So for this compound double bond act as a substituent and triple bond include in the main parent chain. ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट अगर दोनों ही साइड से नंबर ऑफ कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम तो उसके बाद हम उनकी पोजीशन चेक करेंगे। तो जो मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के ज़्यादा क्लोज है उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे एंड द अदर मल्टीपल बॉन्ड आर एक्ट एज अ साइड चेन। इज इट क्लियर? सो द नेम फॉर फर्स्ट कंपाउंड बिकम, अब थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 3, सब्स्टिट्यूएंट कंटेन 3 कार्बन एटम, प्रोप। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम उसी कार्बन से शुरू करेंगे विच आर अटैच्ड विद द पेरेंट चेन 1 2 3। सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इन और साइड चेन के लिए आई लगेगा तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम आ जाएगा 3 प्रोप 2 इनाइल। कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। नाउ द मेन चेन कंटेन 6 कार्बन एटम, 6 के लिए हेक्स। 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 4 इन 2 ऑन। एंड फॉर दिस कंपाउंड नेम्ड एज 3 प्रोप 2 इनाइल hex 4 ion 2 on. Is it clear? Now when a chain terminating functional group, like aldehyde, carboxylic acid, esters, amide group, acid chloride, cyanide, etc. are present. अब ये जो है ये टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं। टर्मिनेटिंग ग्रुप है मतलब चेन हमेशा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी एंड दे आर ऑलवेज गिवन नंबर 1। ये कहीं पे भी प्रेजेंट है, हमारी जो पेरेंट चेन है वो हमेशा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से प्रेजेंट होगी। दे आर नेम्ड एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। लाइक इन दिस कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट हेयर, सो हम हमेशा यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, फिर चाहे वो
हमारी लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूड करे या ना करे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं से these groups are known as chain terminating functional group and they are always given position 1. So यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग करेंगे तो ई पहले आएगा, सो इट इज नेम्ड एज 2 इथाइल 2 मिथाइल. पेरेंट चेन कंटेन 4 कार्बन एटम. 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, एन. ऑल द कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड, तो एन. नाउ फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन, तो 1 एल्डिहाइडी ग्रुप है, CHO ग्रुप इज एल्डिहाइडी ग्रुप. एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स इज अल. अब ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन ही आएगी. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन मेंशन करो या ना करो, इट इज नॉट नेसेसरी. तो आइदर यू कैन राइट इट एज ब्यूट एन 1 और ब्यूटेनल. इज इट क्लियर? इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड is present as a functional group. Carboxylic acid is a chain terminating group. chain terminating group है तो फर्स्ट पोजीशन यहीं से आएगी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नाउ द पेरेंट चेन कंटेन 4 number of carbon atoms. Now it include 2 substituent. One is methyl group and another one is chlorine. ठीक है, हेलोजन है. क्लोरीन सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, तो इट इज नेम्ड एज 3. प्रीफिक्स फॉर क्लोरीन ग्रुप इज क्लोरो. 3 क्लोरो 2 मिथाइल. ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट एन. कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, मेंशन करो या ना करो, इट इज नॉट नेसेसरी, तो ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. इज इट क्लियर? Now next is if a compound contains 2 or more functional group, then the prefix di, tri, tetra, etc. are used. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, then the prefix di, tri, tetra are used. Like for this compound, now this compound contain carboxylic acid for 2 times. 1 2 3 4. इस साइड से नंबरिंग करेंगे तब भी ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ही आएगा. अब यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो किसी एक को ही आप फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो. सो द नेम फॉर दिस कंपाउंड बिकम 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट. डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है इन. अब जो मेन फंक्शन ग्रुप है इट प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन. 2 बार है तो डाइओइक एसिड. अब यहाँ पे जब आई और ओ 2 वोवल्स एक साथ है, यहाँ पे जो डाई का आई है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, डाई का आई इट रिमेन सेम. और डी और इन का भी जो ई है, ई एज इट इज रहेगा बिकॉज डी बिकम कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट के साथ आपका वोवल हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. सो द नेम बिकम ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज. अब इसकी हम नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से? अगर हम इस साइड से करते हैं देन 1 2 3 4 5. देन द मल्टीपल बॉन्ड गेट सेकेंड पोजीशन एंड फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 द मल्टीपल बॉन्ड गेट थर्ड पोजीशन. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों साइड से फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे ही रहेंगे, बट फ्रॉम दिस साइड द मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट पोजीशन, तो हम नंबरिंग ये वाली प्रेफर करेंगे. सो द नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड बिकम 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट. सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन. नाउ द फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन, तो 1 5 डाई. अब फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है? एल्डिहाइडी ग्रुप. CHO ग्रुप इज एल्डिहाइडी ग्रुप. एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए सफिक्स इज अल, तो पेन 2 इन 1,4 डाइअल. Now this organic compound contain 2 ketonic group, C double bond O group at second and fourth position from both the sides. So pent, all the carbon atoms are joined by single bond, so primary suffix ane. Ketonic group are present at second and fourth position, तो डाई ओन. कीटोन्स के लिए जो
suffix है that is on, so the name for this compound become pentane 2,4-dione. Is it clear? So these are the rules for organic compound containing functional group, multiple bond and substituent. Now next is rules for IUPAC nomenclature of polyfunctional group. Polyfunctional group अगर organic compound एक से ज़्यादा functional group include करते हैं, बट अब अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो एक ही रहेगा, दैट इज अवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. नाउ व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं देन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, एक ग्रुप को हम एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे एंड द ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. और जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे देन वी राइट देम एज प्रीफिक्स नोट इन सफिक्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम हमेशा उनका प्रीफिक्स लिखेंगे, उनके लिए सफिक्स हम मेंशन नहीं करेंगे. अब हमारा गिवन फंक्शनल ग्रुप में से मेन ग्रुप कौन सा होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस ऑर्डर एंड द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द फंक्शनल ग्रुप इज दिस. अब यहाँ पे जो सबसे पहले प्रेजेंट है उनको हम हमेशा प्रेफर करेंगे एज कंपेरिजन टू अनदर फंक्शनल ग्रुप. amine salt is preferred over carboxylic acid, then sulfonic acids, anhydrides, ester, acid chloride, then acid amine, then nitrile, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, phenol, thiols and amines. ठीक है, लाइक अगर हमारे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर एल्डिहाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यूज होगा एज द मेन प्रिंसिपल ग्रुप एंड एल्डिहाइड्स आर यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट. इज इट क्लियर? आउट ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल, कीटोन आर यूज्ड एज द मेन प्रिंसिपल ग्रुप and alcohols are used as a substituent. Is it clear? Order firstly contain amine salts, then carboxylic acid, sulfonic acid, after that carboxylic acid derivative. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में जो हमारा जब हम OH को किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे, अगर OH आपका रिप्लेस होता है बाय OC डबल बॉन्ड O ग्रुप देन इट बिकम एनहाइड्राइड, OR से रिप्लेस होगा देन ईस्टर, Cl से एसिड क्लोराइड, NH2 एसिड एमाइड. ठीक है, इसमें भी डेरिवेटिव में जो ऑर्डर रहेगा एनहाइड्राइड, ईस्टर, क्लोराइड्स देन एसिड एमाइड. आफ्टर दैट द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन विथ ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में दो ही आएंगे आपके, साइनाइड ग्रुप एंड आइसोसाइनाइड. ठीक है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल जो इनका सफिक्स होगा. नाउ देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल ग्रुप होगा बेंजीन के साथ OH, देन थायोल्स, देन एमाइंस. ठीक है, एमाइन सोल्ट आपके लाइक अगर NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस टाइप से प्रेजेंट है. यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है इट इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय यानी और कार्बन चेन. ठीक है, आर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आर एमाइन सोल्ट. इज इट क्लियर? सो जो इनका ऑर्डर रहेगा सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन एसिड डेरिवेटिव्स, एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड, क्लोराइड, एसिड एमाइड्स, then the compound containing triple bond cyanide and isocyanide, then double bond aldehyde, ketone, etc., then compound containing single bond. Is it clear? इनको फर्दर लर्न करने के लिए ट्रिक आ जाएगी लाइक कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे अम्बेस्टर
सियाको टेम्पो जैसी थी। ठीक है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाको टेम्पो जैसी। कार कार्बोक्सिलिक एसिड, सेंट्रो एस सल्फोनिक एसिड, AN एनहाइड्राइड, ट्रो सेंट्रो, ट्रो में ट्रो मीन्स एस्टर। ठीक है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन रिजेम्बलेंस है। कार सेंट्रो ऐसी थी, ऐसी मीन्स एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O Cl। थी जैसे का कोई रोल नहीं है, एम्बेसडर AM आ गया तो यहां से एमाइड, जैसे एम्बेसडर सियाको C साइनाइड, I आइसोसाइनाइड, A एल्डिहाइड, K कीटोन, O अल्कोहल। टेम्पो टेम्ट थायोल, वो इपॉक्सी ग्रुप एक आता है। कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन एटम, देन इट इज नेम्ड एज इपॉक्सी ग्रुप। इज इट क्लियर? सो इसके लिए जो ट्रिक आ जाएगी डेट इज कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाको टेम्पो थी। एंड द फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजेंस ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर always used as a prefix as halo, fluoro, chloro, bromo, iodo, nitroso group, NO, nitro, NO2, alkoxy, OR that is ether, alkyls which are used as a substituent, phenyl group जब बेंजीन रिंग आपकी एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगी, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप। तो द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड देयर प्रीफिक्स, हेलोजेंस के लिए प्रीफिक्स हेलो, OH अल्कोहल, the prefix used for alcohol is hydroxy and suffix is ol. Ether OR, alkoxy group, NH2 group, prefix for amines are amino, NHR, R अब यहाँ पे नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ है, सो प्रीफिक्स आर अल्काइल एमिनो। 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 2 अल्काइल ग्रुप, देन इट इज नेम्ड एज डाइअल्काइल एमिनो। For aldehyde group prefix is formyl. For ketonic group prefix oxo और keto. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, एसिड क्लोराइड क्लोरो कार्बोनिल। For cyanide group prefix is cyno, एसिड अमाइड कार्बोमाइल और कार्बोक्सामाइड। Is it clear? So these are the prefix used for secondary functional group. And the parent chain must contain the principal functional group and the maximum number of secondary functional group and multiple bond. ठीक है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो जो पेरेंट चेन होगी उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही, एंड वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच ऑल्सो इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। एंड इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, देन फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस आएगी डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्सटीट्यूएंट। द प्रीफिक्स फॉर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर सब्सटीट्यूएंट शुड बी प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हम रूल्स हमेशा करते आए हैं, जब भी हम सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग करेंगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। लाइक फॉर दिस कंपाउंड, write the name of this compound, CH2 double bond C, CH3 CH, OH, CH2 CN. Now this compound contain 2 functional group, alcohol and cyanide.
So out of these two functional group, which one is the main principal group? अब यहाँ से देखिए हमने किया था, सबसे पहले जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो एसिड, देन एसिड डेरिवेटिव, देन द ग्रुप कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस ग्रुप कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल सिंगल बॉन्ड आएगा. तो हमें पता है कि आउट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी. तो जो हमारा मेन ग्रुप है डेट इज साइनाइड ग्रुप. साइनाइड ग्रुप का कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड होगा. सो आवर मेन चेन इज दिस. नाउ द पेरेंट चेन कंटेन 5 कार्बन एटम with 1 substituent functional group and 1 substituent. So the name for this compound is, अब पहले हमने जो substituent की नेमिंग करनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे. OH के लिए प्रीफिक्स अल्कोहल जब ऐसा सब्सटीट्यूएंट यूज होगा देन उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा डेट इज हाइड्रोक्सी. और ये मिथाइल, तो M और H में जो पहले आएगा डेट इज H. तो ये 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल. Now the main chain contain total 5 carbon atom pent, 4 ene, 1 nitrile. Cyanide के लिए जो हमारा suffix होगा that is nitrile. Now write the name for this compound. सबसे पहले it contain 2 functional group. अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप. अब यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं. नाउ दिस सी डबल बॉन्ड ओ कंटेन कार्बन एटम फ्रॉम बोथ द साइड. सो दिस इज कीटोनिक ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. नाउ आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच वन कम्स इन प्रेफरेंस ऑर्डर? दोनों में डबल बॉन्ड है. अब डबल बॉन्ड में एल्डिहाइड पहले आएगा या कीटोन? दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्ड सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाको. सियाको में CIAKO, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल. आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड को हम प्रेफरेंस देंगे. तो 1 2 3. तो हमारा जो अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन. नाउ इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ये सेकंड पोजीशन पे है. कीटोन के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट आइदर ऑक्सो और कीटो. तो 2 oxo, parent chain contain 3 carbon atom prop. All the carbon atoms are joined by single bond. Prop ane 1 al. Is it clear? तो ये फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ का जो इन का ई है वो ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज जो हमारा सफिक्स है नाइट्राइल इट कंटेन कॉन्सोनेंट नॉट वोवल. ये ध्यान रखना. नाउ राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो सबसे पहले इसको ओपन चेन की फॉर्म में लिख लीजिए. 1 फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड. नाउ दिस थर्ड कार्बन एटम, थर्ड के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच्ड है. इसके साथ 1 कार्बन. नाउ दिस कार्बन अटैच्ड विद डबल बॉन्ड. हमारी ये आ गया कंपाउंड. दिस कंपाउंड कंटेन ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप. तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे. फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5 4 5 6 7. तो दिस इज अवर पेरेंट चेन. अब सब्स्टिट्यूएंट आपके थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, फोर्थ पे मिथाइल है. तो जो इसकी नेमिंग आ जाएगी डेट इज 3 इथाइल 4 मिथाइल. For 7 Verdut is Hept. Now double bond is present at 5th position, 5 in 2 on. Is it clear? Now next is, now this compound contain 2 functional group. One is CHOH. OH is alcohol and another is COCl, that is acid chloride. ठीक है. Now acid chloride are acid derivative. acid derivatives को हम alcohol के comparison में हमेशा preference देंगे. So our main functional group is this acid chloride. 1 2 3 4 5 6. Now here 2 substituents are present. One is alcohol and another is methyl group. alcohol के लिए जो prefix है वो hydroxy. hydroxy पहले आएगा. So 3 hydroxy 4 methyl
6 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड आपका 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है 5 आइन। एंड फॉर एसिड क्लोराइड सफिक्स इज ऑयल क्लोराइड, तो 1 ऑयल क्लोराइड। ई यहां से ड्रॉप हो जाएगा आपका। The next this compound. Now this compound contain 2 functional group. One is ether and another one is alcohol. Ether आपका हमेशा ऐसा प्रीफिक्स ही यूज होगा। इथर में 2 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन होंगे दोनों साइड, तो जो द साइड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर यूज्ड एज एल्कोक्सी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, सो इट इज यूज्ड इन एल्कोक्सी फॉर्म। 2 कार्बन के लिए इथोक्सी। Now our parent chain is this CH2 CH OH CH3, तो हम उस कार्बन से नंबरिंग करेंगे which is attached with oxygen. So here it contain 3 carbon atom prop. All the carbon atom are joined by single bond propane to alcohol के लिए जो सफिक्स होगा that is all. ठीक है, अब आपका जो इथर है वो फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो इसको 1 मेंशन कर सकते हैं आप। सो दिस कंपाउंड नेम्ड एज 1 इथोक्सी प्रोपेन 2-ol. इज इट क्लियर? सो दीज आर द रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, for the organic compound containing functional group, substituent, and rules for organic compound with polyfunctional group. Is it clear? I hope you understood all these rules. And now the remaining rules, that is rules for naming alicyclic and aromatic compounds, we'll study in our next lecture. Thank you and have a nice day.